new classes. This is class part 4 for chapter 1, knowing new numbers. Then let's get start. Today's our topic is comparing and ordering larger numbers. First of all, we need to understand about that. What comparing? Compare means तुलना करना. Large number कौन सा है, small number कौन सा है? You say that, sir, in previous classes we have already discussed about that. But what is the need to discuss now? Here is something different. What is the difference between this? Comparing and ordering. ऑर्डर नहीं करना. यहाँ बहुत सारे आपके पास में in front of you given question provides some numbers and they say to be defined as largest, smallest, smallest, and you have to find that something is different. Then let's have again an example. Four, five, six, zero, 7, 5, 3 and 4, 5, 6, 0, 1, 3, 5, 2 and 7, 9, 1, 2, 3, 5 and 4, 5, 0, 7, 6 and 4, 5, 6, 0, 7, 5, 3, 0. These number we have to. Here is what we have to separate. We have to adjust as larger number ordering basically. Then how can we find that? Here is first of all we need to identify. क्या पता करना है हमें ये पता करना है. सबसे पहले देखना है काउंटिंग में नंबर्स डिजिट सबसे पास ज्यादा किसके पास है. Which number has the more digits? Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 7, 6 and 4. You say this, sir, this and this are same, but अब हमें इन दोनों में ही पता करना है कि सबसे बड़ा सबसे लार्जर कौन सा है, which is larger. तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें क्या करते हैं. एक सिंपल ही तरीका है जैसे मैंने कल आपको बताया था. स्टार्टिंग डिजिट से फॉलो करते चलते हैं. सेम टू सेम आया तो हम आगे बढ़ जाएंगे. जहां डिफरेंस पता चल गया वही हमारा लार्जर और स्मॉलर पता चल जाएगा. Then 4, 4 same, 5, 5 same, 6, 6 same, 0, 0 same, but here is 1 and here is 7. तो 1 और 7 में कौन बड़ा आपका होगा सर. ऑब्वियसली ये तो ये 1 नंबर पे आ गया हमारा, है ना. चलो ये तो कैंसिल. इसको हमने सबसे पहले अपने आंसर में यहाँ लिख लिया. क्या है 4, 5, 6, 0, 7, 5, 3, 0. Alright. After it what? After it sir, इसके बाद तो ये है क्योंकि इसके पास तो 6 और 7 डिजिट वाले हैं. Yes. 4, 5, 6, 0, 1, 3 and 5, 2. After it what? After it we have this will also be cancelled out. We have the option only 3 numbers as 7 digits, 6 digits and 4 digits. Then obviously you know that the 7 digits we will take 4, 5, 6, 0, 7, 5, 3 and after that 6 digits 7, 9, 1, 2, 3, 5 and last again 4, 5, 0, 7, 6. After it we will get the answer and you will note it out. Please note down this. Okay, done? I hope you all understand. Please be with this video, keep watching long time, then you will get understand. After it, our next topic is not here. Chapter 1 is totally finished, but some questions about practicals.
Question number 1. We will prefer the book of S. Chand, class 6. An amount of rupees 915750 is shared equally among 185 people. How much does each person receive? क्या कहा इसने? An amount of this 1, 10, 100, 1000, 9,15,750 is shared equally. 9,15,750 रुपए को इक्वल शेयर किया गया है, बांटा गया है। अमाउंट किसमें? 185 पीपल्स में, 185 लोगों में इतने पैसे को इक्वल बांटना है। क्वेश्चन आस्क हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, तो हर एक पर्सन को कितना रिसीव होने वाला है। बनाना बहुत आसान है, बट एक तरीका होता है, एक टाइप होते हैं फॉर, उसको हम कैसे प्रेफर करते हैं, एक फॉर्मेट होता है। सॉरी, पहले क्वेश्चंस में पहचानना होता है, क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है, गिवन क्या कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन है आस्क क्या किया हुआ है। क्योंकि आप एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस को लैंग्वेज में थोड़ी लिखते हैं। वी डोंट नीड, वी हैव सफिशिएंट टाइम। क्या करते हैं, पहले आंसर्स में गिवन लिख लेते हैं, बट शॉर्ट में, नॉट लैंग्वेज। 9175 rupees, this is total, and 185, this is people, this is total। इतने रुपए हैं, इतने टोटल पीपल है हमारे पास में। हमने से क्या पूछ दिया? ईच हाउ मैनी रिसीव, क्वेश्चन कितने रिसीव करेंगे, ये गिवन, ये ईच। इससे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन की पढ़ने की जरूरत ज्यादा बार हमें पड़ती नहीं है। कैसे बनाएंगे? जब भी टोटल में से किसी एक का पार्ट पूछा हो और स्पेशली इक्वली में आपको डिवाइड करना होता है, क्योंकि जब बड़ी चीज छोटे में बट जाएगी वो कम ही तो हो जाएगा, और कम तो चांस एक ही बात में है, वो क्या डिवाइड में होता है। कैसे करेंगे? रुपीज 915750 एंड डिवाइड बाय 185 पीपल्स। कैसे करेंगे इसको डिवाइड? बच्चों वाला डिवाइड ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से हमारा टाइम और वेस्ट हो जाता है, और आप फिर उससे वही बच्चों वाले क्लास में चले जाते हो। 0 0 तो 5 से लग सकता है, 5 3 जा 15, 3 रिमेनिंग, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, and 0 again. That is what 183150 37 से इसको हमने डिवाइड करना है। आप कैसे करोगे? 6 बार में ज्यादा आ जाता है, देन आप विल टेक 5 टाइम्स में कितने आ जाते हैं? आप इसको आई विल टेल यू कि आप इसको खुद सॉल्व करो और यू विल गेट आंसर आफ्टर इट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड प्लीज नोट डाउन दैट। Okay, done? मैं ये समझ के कुछ छोड़ रहा हूं कि आप मैच्योर बच्चे हो, आप कुछ डिवाइड कर सकते हो, कैलकुलेशन करने से माइंड पावर तो तेज होती है ना। ठीक है, आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और करवा रहा हूं मैं, वो है क्वेश्चन 2। बॉक्स contain a box contain
80 packets of biscuits, each weighing 125 gram. 125 gram. How many such boxes can be loaded in a van which can carry a maximum load of 300 kg. क्या बोला है इसमें? एक बॉक्स कंटेन 80 पैकेट्स एंड ईच का वेट कितना है? 125 ग्राम. 80 पैकेट्स एक बॉक्स में आते हैं और हर पैकेट का वेट है 125 ग्राम. लिख लेते हैं इसको पहले गिवन में. A box is equal to 80 packets. One packet is equal to 125 gram. कहते हैं एक वैन में कितने ऐसे बॉक्सेस आ सकते हैं, कैरी कर सकता है एक वैन, अगर उस वैन की मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरी इन वेट इन क्वांटिटी 300 kg हो. कैन लोड इज इक्वल टू 300 kg. अब पैकेट्स को लोड करेगा, सॉरी बॉक्स को लोड करेगा, तो आप पहले एक बॉक्स का वेट फाइंड आउट करोगे. कैसे पता करेंगे हम? वेट तो ज्यादा होने वाला है, ज्यादा तभी होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे हम. देखते हैं. अ बॉक्स इज इक्वल टू 80 पैकेट्स मल्टीप्लाई 125 ग्राम. This is 0 and gram. 10,000 grams means what? 10 kg. एक बॉक्स का 10 kg. वैन कितना कर सकता है? 300 kg. अब वे नंबर्स ऑफ जान रहे हैं तो नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके निकालेंगे ना. Number of packets is equal to 300 kg by 10 kg. इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 30 packets. Fine. Okay. I hope you understand. Okay then. Fine.